लेट्स। तो आई वाज आस्किंग कि ये वाला आपने बेटा, ये वाला जो रिएक्शन है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यू लर्न इन योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाले टॉपिक में। ठीक है, किस किस को याद है ये वाला? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दिस? हाउ कार्बन डाइऑक्साइड गेट ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी में? उसमें से एक वे जो था वो ये वाला वे था, रिमेम्बर। ठीक है, इट्स क्या है ये? बाइकार्बोनेट। इट्स अ बाइकार्बोनेट। नाउ it enters in mesophyll because water and carbon dioxide enter simultaneously. So what they form? They form this. Now here is one product already present, that is PEP, phosphenol pyruvate. ठीक है, now it is going to combine with carbonic acid. ठीक है, sorry, bicarbonate. So what it is going to form? It is going to form our first stable 4 carbon intermediate. वो क्या है? oxalic, or we can say oxalo acetic acid. And how can we write it? हम इसको जो है abbreviated form में O A A करके लिख सकते हैं. We can write it as such also. Oxalo acetic acid, and it is 4 carbon molecule. And based on this, we named our cycle as C4 cycle. ठीक है, इसी वजह से हमने इसको C4 cycle नाम दिया है. ठीक है, and the enzyme that is used here, it's PEP carboxylase, जिसको पेपकेस भी कहते हैं. पेपकेस, पेप कार्बोक्सिलेज और पेपकेस. So once it formed, it is converted into another 4 carbon molecule. जैसे ही oxaloacetic acid बनता है तो वो एक और 4 carbon molecule बनाता है, that is malate. That is malate. Now this malate is permeable to the bundle sheath cell. अभी क्यों बनाया? What is the reason of forming this malate? malate किस लिए बनाया? ये तो ऑलरेडी 4 कार्बन था, एक और 4 कार्बन क्यों बना दिया? Because now malate can move to bundle sheath cell. malate जो है वो जा सकता है बंडल शीट सेल. हमने पढ़ा था बंडल शीट सेल मोटी होती है, वॉल मोटी होती है, ऑक्सीजन गैस तक इसको पार नहीं कर पाती. So now, but this molecule is permeable to the bundle sheet cell, so it can move. तो इस वजह से oxaloacetic acid ने malate बनाया through an enzyme malate dehydrogenase. Okay. So now it is now entered in the bundle sheet cell as 4 carbon molecule. Now what is going to happen? Now what is going to happen here? इससे बनेगा 3 carbon molecule. And what that 3 carbon molecule is? It's pyruvic acid. It's pyruvic acid. It's a 3 carbon. एक कार्बन कहां जाएगा? It will move as carbon dioxide. वो कैसे निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनके निकलेगा. And where it will go? It will go in C3 cycle, जो कि बंडल शीट सेल में हो रही है, उसमें जाएगा और RuBP के साथ कंबाइन करके what is going to form 3PGA. So it will go into the C3 cycle. ठीक है, it becomes, यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन बन गया, एक कार्बन यहाँ चला गया. इट इज जस्टिफाइंग कि 4 कार्बन के 4 कार्बन कहाँ गए? 3 यहाँ पर गए और एक यहाँ पर गया. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा उसको भी देख लेते हैं. नाउ दिस pyruvic acid
again go to the mesophyll cell and form PEP. ये बना देगी PEP यानी कि फॉस्फिनॉल पायरुवेट थ्रू एन एंजाइम फॉस्फो पायरुवेट dikinase. So this enzyme is going to use here. Is it clear? Again here recycle. जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो रिसाइकल हो रहा है, यहाँ पर पेप हो रहा है, C3 में RUBP हो रहा था. अब इसका निमोनिक क्या बन सकता है? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट. जो फर्स्ट है हमारा उसी से स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ देखो कार्बन से शुरू हो रहा है, उसके बाद बाइकार्बोनेट बन रहा है. चलो ओम पढ़ो. So here you can see these are the letters that tell us the sequence. चलो ओम पढ़ो. ठीक है. C for carbon dioxide, then what is next? That is bicarbonate, then oxalic acid, then we have malate, then we have pyruvate. ठीक है. So you can remember this cycle in this way, C4 cycle. और जो ये अकेला है, only this thing is getting formed here in this, that is bundle sheath cell में. बाकी जो सारा है वो mesophyll cell में बन रहा है. ठीक है. This is the thing that is getting prepared here in this bundle sheath cell, जो अकेला है. Is it fine? Yes. Understood बेटा? Yes. ओके. तो अनुभव बताएगा क्या समझा. Yes, Anubhav, you tell me what you understood, beta. Yes, Anubhav, beta C for yes. सबसे पहले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ने जब रिएक्ट की उनसे बाइकार्बोनेट बना और उनने फिर फॉस्फिनॉल पायरुवेट फॉस्फेनॉल पायरुवेट के साथ रिएक्ट किया और फर्स्ट स्टेबल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना. फिर उससे क्या बना? मिलेट. मैलेट. उसके बाद मिलेट के बाद पायरुविक एसिड बना. फिर पायरुविक एसिड से अगेन बैक पैक, है ना? यस. अब मुझे कौन बताएगा मैलिक एसिड या मैलेट क्यों बना? Who can tell me? मैंने आपको बताया ऑक्सैलिक एसिड इज आल्सो 4 कार्बन मॉलिक्यूल, मैलेट इज आल्सो 4 कार्बन मॉलिक्यूल. सो व्हाई देयर इज नीड फॉर दिस मैलेट एसिड? मैम बिकॉज जो बंडल शीट सेल्स है उनकी जो मेम्ब्रेन है वो थिक है एंड वहां पर ऑक्सीजन जो पास नहीं हो सकती, इसीलिए वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मेलेट में कन्वर्ट होता है. इसलिए नहीं, अगर ऑक्सीजन पास नहीं थी इसलिए नहीं, वो तो मैंने आपको साथ में बताया था कि अगर वो भी नहीं जा सकती
तो कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन बिकॉज मैलेट की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, इट कैन इजिली पास थ्रू द बंडल शीट सेल। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड चाहे कितनी इकट्ठी हो जाए, इट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, बट मैलिक एसिड। ठीक है, सो दैट्स द रीजन। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? अब इसमें मुझे बताओ कितने, अब आपको क्या लगता है इसमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए, तो मेक वन यहाँ पर बनेगा ना ग्लूकोज, तो C3 साइकिल में। ठीक है, and we learned to make one glucose molecules, how many ATPs and NADPH are required? कितने चाहिए होते हैं, बताओ जल्दी से बताओ। Who is going to tell? सुखमनी, yes सुखमनी, बताओ बेटा। माइक वही रहने दो, I can easily hear you, वही रख दो बेटा। क्वेश्चन रिपीट करना। To make one glucose molecule, how many ATP and NADPH are required? 18 ATP and 12 NADPH. That's nice. Good बेटा। So हमने पढ़ा था 18 ATP and 12 NADPH molecules are required. So it was the case of C3 cycle, है ना? So now let's move. Now we are discussing about C3, C4 cycle. अब यहाँ पर in 1 ton, again listen, 1 ton पे we are using 1 carbon dioxide. ठीक है, to make 1 molecule of glucose, how many tons of this cycle is required? कितने चाहिए होंगे हमें? 6 6 tons. That's nice. तो यहाँ पर भी हमें 6 tons चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले सुनो। Now here 5 ATPs instead of 3, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, 5 ATPs and 2 NADPH are used in 1 ton. 1 ton की बात कर रही हूं मैं। So now in this cycle, how many ATPs and NADPH molecules are consumed? बताओ। Now who is going to tell? Now you have to do some calculation here. 12 मुझे हैंड रेज करके बताओ, who is going to tell? I can see. Okay, okay, yellow t-shirt. चलो बताओ, पहले अपना नाम बताओ, because you know I am remembering your names now. चलो बताओ जल्दी। मैम इशिता। इशिता, yes बेटा बताओ। मैम 30 ATPs and 12 NADPH. That's fine. That's fine. But so, huh? Are they moving mic? Same one that we are using. No. They students mic move करवा रहे। 3 मिनट नहीं लगते। बीच में पड़ा हुआ है। हाँ। So 12 NADPH. ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिखो, जैसे कल लिखी थी C3 की, अपने आप लिखो, फिर मुझे बताओगे कि क्या इक्वेशन आई आपकी। Now you know the reactant molecules, you know the product, you know energy molecules. अब इसको एक अच्छी सी इक्वेशन में लिखो, ठीक है। So here what we have PEP starting में, but
हमारी C3 cycle is also here in the bundle sheet cell, so we need RUBP also, क्योंकि ग्लूकोज तो वही बन रहा है ना, ग्लूकोज is synthesizing there only, वहीं पर बन रहा है. Then we should need carbon dioxide, we will have ATP in that, and last is NADPH. तो ये तो हमारे पास है ही है, जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है. अब कितने हैं that you have to tell me. कितने पैप चाहिए होंगे to make one glucose molecule? Yes. And IUPP? 6. That's nice. Carbon dioxide? 6. That's nice, wonderful. ATP? 30. And NADPH? 12. 12. So अब हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? So let's see our equation. क्या आ जाएगा? पैप रिसाइकल होएगा, वापिस आएगा. So you have studied, हमने पायरुविक एसिड से वापिस पैप ही लेके आए थे, तो बिकॉज अगर ये होगा तभी तो एक्सेप्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड. So it's a primary acceptor of carbon dioxide. Now RUBP आपको पता ही है, वो तो वापिस आएगा ही आएगा, ठीक है. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन जाएगा? इट्स इनऑर्गेनिक, ठीक है. ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो इट बिकम्स शुगर. एटीपी से एडीपी बन जाएगा, एंड इट विल रिलीज 30 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. along with this it will release 12 NADP. So this is our equation. यही सब की आई थी, ठीक है. तो जो बायो में इक्वेशन है, डोंट हैव टू क्रैम, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे आई. तो हमारी इक्वेशन कैसे आई, नाउ वी नो कि कैसे आई, ठीक है. सो विद दिस आवर C4 साइकिल इज कंप्लीट, ठीक है. एंड C3 and C2 we already did, है ना, कल कर लिया था. So let's do last topic, ठीक है, that is laws of limiting factor. So उसमें हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, it's totally theoretical, तो आपको भी पता ही होगा कि क्या होता है ना. लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, कोई बता सकता है? क्योंकि I have assumed you know that, मैंने assume किया हुआ है कि आपको आता होगा. yes? Absence of carbon dioxide. अच्छा, ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया. इज दिस द लिमिटिंग फैक्टर? इसको तो लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं. आप एक सब्जी बना रहे हो, यू आर मेकिंग समथिंग, सपोज करो कोई खाना बना रहे हो, ठीक है, दाल बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, वट एवर यू आर मेकिंग. अब उसमें अगर आपने मसाले डालते हो, यू हैव एडेड स्पाइस, यू आर एडिंग स्पाइसेस. इट कैन बी गरम मसाला हो गया, आपका चिली पाउडर हो गया, सो यू हैव टर्मरिक पाउडर, ठीक है, सॉल्ट हो गया. सो यू आर एडिंग दीज स्पाइसेस, तभी हमारा खाना जो है अच्छा टेस्टी बनेगा. यस और नो? यस और नो? Yes. अगर हम कह रहे हैं सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, ठीक है, गरम मसाला, एंड आई सेड चिली पाउडर, ठीक है, वी हैव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. सो चिली पाउडर. अब इनमें से हमें सबका कितना चाहिए? वी नीड ओनली, लेट्स से वी नीड ओनली 1 or 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू मेक इट टेस्टी. टर्मरिक का 1 स्पून वी नीड. गरम मसाला का लेट्स से वी नीड ओनली 1 स्पून, इसका भी. चिली पाउडर सपोज वी नीड ओनली हाफ स्पून, ठीक है. अगर इतना डालेंगे तब वो वर्केबल है, अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा, ठीक है. अब इसमें से किसी का भी कम ज्यादा हो जाता है, इफ वी रिड्यूस और इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एनी ऑफ दीज, क्या लगता है आपको, खाना थोड़ा टेस्टी रहेगा, टेस्ट अलग सा आएगा? अगर मैं नमक कम कर दूं, इफ आई रिड्यूस इट, और बाकी सब सेम रख दूं, तो खाने का टेस्ट वही आएगा? चेंज हो जाएगा, इट गेट चेंज, ठीक है. इंक्रीज कर दूं, बाकी सब तो मेरे सेम वही है, बट आई एम चेंजिंग ओनली दिस,
Let's say